آغاز میں آپ کو بتائیں 21 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا اپوزیشن کا مطالبہ مسترد۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے اب اجلاس بلا لیا ہے، 25 مارچ کو طلب کر لیا ہے۔ اجلاس تاخیر سے بلانے کا جواز بھی بتا دیا گیا کہ 22 اور 23 مارچ کو پارلیمنٹ میں OIC کانفرنس ہوگی، 24 سے پہلے اجلاس بلانا ممکن نہیں تھا۔ اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے عثمان خان سے۔ عثمان، آگاہ کیجئے گا نوٹیفیکیشن میں مزید کیا کچھ ہے؟ جی بالکل، اسپیکر اسد قیصر نے اپوزیشن کی ایک نہیں سنی اور قومی اسمبلی کا اجلاس آئین کے شیک 54(3) اور شیک 254 کے تحت تفویضی اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس اپوزیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی ریکوزیشن پر طلب کیا گیا اور یہ موجودہ قومی اسمبلی کا 41واں اجلاس ہوگا، جو کہ جمعۃ المبارک کو دن 11 بجے طلب کیا گیا، اور اس حوالے سے ایک بڑی وضاحت جو ہے وہ بھی اسپیکر کی جانب سے سامنے آئی۔ ایک باضابطہ طور پر حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس میں وجوہات بتائی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا کہ 8 مارچ کو اجلاس بلانے کی ریکوزیشن اپوزیشن کی جانب سے موصول ہوئی تھی۔ قومی اسمبلی نے OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے لیے قومی اسمبلی ہال میں انعقاد کے لیے 21 جنوری کو قرارداد منظور کی تھی۔ قومی اسمبلی چیمبر کو فروری کے آخر میں ضروری تزئین و آرائش کے لیے وزارت خارجہ کے سپرد کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا کہ اجلاس کی ریکوزیشن ملتے ہی سینٹ سیکریٹریٹ سے ہال مانگنے کی درخواست کی گئی، لیکن انہوں نے بھی چیمبر دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد چیئرمین CD اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو بھی اجلاس منعقد کرانے کے لیے کوئی موضوع جگہ تلاش کرنے کا کہا گیا، اور ڈپٹی کمشنر اور چیئرمین CD نے بھی تحریری طور پر یہ بتایا کہ کوئی موضوع جگہ نہیں ہے، اور اس کے بعد تمام حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے 25 مارچ کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر جو ریئیکشن سامنے آیا مسلم لیگ نون کی جانب سے، تو ان کا یہ کہا گیا کہنا ہے خواجہ سعد رفیق کا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 21 مارچ کے بعد جی یہی بات ہم بھی اسی کو جو ہے نا الیبریٹ کرنا چاہ رہے تھے، یہی رد عمل بھی بتانا چاہ رہے تھے۔ عثمان، بہت شکریہ آپ نے اس بارے میں اپڈیٹ کیا۔ لیگی رہنما سعد رفیق نے قومی اسمبلی اجلاس کے 21 مارچ کے بعد انعقاد کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ کہا آئین کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ جانا ہوگا۔ سلیکٹڈ کے حکم پر اسپیکر آئین اور قانون کو موم کی ناک بنا سکتا ہے، نہ ہی من مرضی کی تشریح کر سکتا ہے۔ سیاسی وفاداریوں کی جبری تبدیلی کروانے والوں نے اقتدار کے لیے آئین اور ریاست کو داؤ پر لگا دیا۔ انہوں نے ایسا بھی کہا۔ لیگی رہنما سعد رفیق نے قومی اسمبلی اجلاس کے 21 مارچ کے بعد انعقاد کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا۔ کہا آئین کی تشریح کے لیے اب سپریم کورٹ جانا ہوگا۔ سلیکٹڈ کے حکم پر اسپیکر آئین اور قانون کو موم کی ناک نہیں بنا سکتا اور نہ ہی اپنی مرضی کی تشریح کر سکتا ہے۔ سیاسی وفاداریوں کی جبری تبدیلی کروانے والوں نے اقتدار کے لیے آئین اور ریاست کو داؤ پر لگا دیا۔ انہوں نے ایسا کہا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 21 مارچ کے بعد انعقاد، اس کا نوٹیفیکیشن آیا اور اسی نوٹیفیکیشن کے اوپر رد عمل بھی آ رہا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے اجلاس 25 مارچ کو طلب کیا۔ اجلاس تاخیر سے کیوں ہو رہا ہے؟ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی بتایا گیا 22 اور 23 مارچ کو پارلیمنٹ میں OIC کانفرنس ہونی ہے، 24 سے پہلے اجلاس بلانا ممکن ہی نہیں۔ اب اس سارے معاملے کے بعد رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں حکومت آئین سے انحراف کر رہی ہے۔ ریکوزیشن کے بعد اجلاس بلانے کے لیے 14 دن 21 مارچ کو مکمل ہو رہے ہیں۔ 25 تاریخ کو اجلاس بلانا غیر آئینی اقدام ہے۔ بولے حکومت جو بھی حربے استعمال کر لے، شکست ان کا مقدر بن چکی ہے۔ دیکھیے، حکومت ہر وہ حرکت کر رہی ہے جو چیزوں کو تناؤ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ اگر ریکوزیشن اجلاس ہوتا ہے تو 14 دن میں اندر اس پہ ووٹنگ ہونی ہے، اور وہ 14 دن 21 کو پورے ہو رہے ہیں۔ 14 دن کے بعد آپ نے وہ ریزولوشن پٹ کرنا ہے۔ ہمارا تقاضا کیا تھا؟ 21 کو اجلاس کرو، بالکل کرو، فاتحہ خوانی کرو، اور 1.5-2 منٹ 3 منٹ میکسیمم 3 منٹ لگنے تھے، اور اس میں وہ ریزولوشن پڑھ دینا تھا ممبر نے، اور اس کے بعد ہاؤس ایڈجرن ہو کے 25 کو مل لیتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن یہ حکومت ہر حال میں آئین سے انحراف سے آتی ہے، لڑائی سے آتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اسپیکر کو کہیں کہ وہ 2 منٹ کی ایک ریزولوشن ہے وہ پٹ کرا لے اور آئین کا تقاضا بھی پورا ہو جائے، بجائے اس کے کہ اسپیکر کے اس غلط کام پہ اس کو کنڈیم کیا جائے۔ یہ کہنا کہ جی اپوزیشن دھمکیاں دے رہی ہے، اپوزیشن یہ کر رہی ہے، اپوزیشن کے خلاف ایک مہم شروع ہو گئی ہے۔ اب شیخ رشید نے جو باتیں کی ہیں بڑی افسوسناک ہے، اور اب تو سیدھا ثابت ہو گیا کہ یہ حکومت ایٹ رن ہے، بھاگ رہے ہیں، اور لیکن یہ ہار چکے ہیں۔ اب ان کو کوئی حربہ کوئی ہیلا بچا نہیں سکتا۔ اب ہر بات تو مانی نہیں جائے گی، اور اگر جرت ہے تو روک کر دکھاؤ۔
OIC इजलास होकर रहेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को चैलेंज कर दिया। कहा किसी ने OIC इजलास में मदाखलत की तो उसकी चीखें आसमान तक सुनाई देंगी। बोले जिम्मेदारों के फोन पर अपोजिशन ठीक हो गए, किसी का बाप भी इस कॉन्फ्रेंस को नाकाम नहीं कर सकता। शेख रशीद ने कहा कि आईन पाकिस्तान स्पीकर को इस बात की इजाज़त देता है कि वो हालात और वाक़यात के मुताबिक अदम एतमाद का इजलास आगे लेकर जाए। -1 कोई चीज़ नहीं होती, इमरान खान माइनस कर दिया जाए तो पीछे अंधेरा ही अंधेरा है। बिलावल जो है वो कह रहा है कि हम धरना देंगे। शक्ल देखो अपनी, लानत है आप पे, 3 दफा लानत भेजता हूं। अगर कोई माई का लाल है और OIC कॉन्फ्रेंस में मदाखलत करके बताए, उनकी चीखें आसमान तक सुनाई देगी। जिम्मेदारों का एक फोन आया और आप लेट गए। अब बोलो ना, अब बोलो ना। इनका बाप भी OIC कॉन्फ्रेंस को नाकाम नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता स्पीकर साहब ने कौन सी तारीख देनी है, लेकिन ये स्पीकर का राइट है, आगे ले जा सकता है। इमरान खान माइनस है तो पीछे है ही कोई नहीं, अंधेरा है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये इत्तेहादी भी सोचेंगे, समझेंगे, इमरान खान के साथ चलने का फैसला करेंगे। जो MNA हमसे खफा हो गए हैं, मैं उनसे कहता हूँ खाओ इनका माल लेके वापस आ जाओ, माल इनका खाओ, कोई रज नहीं, और काम इमरान खान का करो। आपके लिए दरवाजे खुले हैं, मैं आपका वकील हूँ। इमरान खान तो 7 तारीख का जलसा वापस नहीं कर रहा जी, 27 तारीख को इमरान खान जलसा कर रहा है। आप भी ना अपना जलसा वापस करें, जूडो कराटे होना है तो हो जाए। अगर तसादम हुआ तो आप पर केस होंगे, जानी और माली नुकसान हुआ, मैं इन लीडरों के खिलाफ आईनी और कानूनी पर्चा दूंगा। अगर PTI के वर्करों के खिलाफ दिया जा सकता है तो फिर इनको भी नहीं बख्शा जाएगा। शेख रशीद समेत वफाकी वज़रा बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत के खिलाफ खड़े होने वाले अरकान मुजाहिद हैं, जिन्हें कोई पेशकश की गई, ना ही उन्होंने किसी किस्म की डिमांड की। राना सना समा से गुफ्तगू कर रहे थे। जो लोग खड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ कि वो अजीम लोग हैं, वो मुजाहिद हैं जिन्होंने इक़्तिदार के सामने, जाबर हुक्मरान के सामने, जालिम हुक्मरान के सामने जो है उन्होंने खड़े होने का फैसला किया और बात की है। किसी बंदे ने न कोई डिमांड की है, न किसी ने ऑफर की है, सब ने अपने ज़मीर की आवाज़ पे जो है वो इस हुकूमत के खिलाफ बात की है, इस हुकूमत से इख्तलाफ किया है, इसकी पॉलिसियों से इख्तलाफ किया है। अब ये जो इस किस्म के उनके मिनिस्टर्स हैं, जिस तरह से ये पिंडी के हैं, इसी तरह से 1-2 और हैं, तो वो ऐसे ही बौखलाहट में जो है वो इस किस्म की घटिया गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले एक बड़ा मामला भी हो गया था। बिलावल भुट्टो ने OIC इजलास रोकने की धमकी दे दी थी। चंद घंटों बाद ही मुत्तहिदा अपोजिशन ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। कहा पाकिस्तान के दाखिली सियासी हालात OIC कॉन्फ्रेंस पर असरअंदाज नहीं होंगे। देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। बिलावल भुट्टो की OIC इजलास में रुकावट डालने की धमकी। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन के बड़ों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर स्पीकर ने इजलास में फौरी तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई ना की तो OIC इजलास खटाई में पड़ सकता है। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके, फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं कर तो फिर कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। बिलावल के बयान के कुछ ही घंटों बाद धमकी देने वाली अपोजिशन ने मुश्तरका एलामिया जारी किया, जिसमें OIC मेहमानों को खुशामदीद कहा गया। अपोजिशन एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान के दाखिली सियासी हालात को OIC कॉन्फ्रेंस पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। मेहमान वज़ीर ख़ारजा और आला शख्सियात का खैर मकदम करते हैं। अपोजिशन एलामिये में ये भी कहा गया कि मेहमानों के लिए ही लॉन्ग मार्च की तारीखों में तब्दीली की। उम्मीद है मेहमानों का क़याम खुशगवार रहेगा और वो अच्छी यादें लेकर जाएंगे। OIC के 48वें वज़ीर ख़ारजा इजलास के लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद शुरू हो गई है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, पुरतपाक इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ारत ख़ारिजा में मिस्री वज़ीर ख़ारिजा सामे हसन शुक्री ने शाह महमूद कुरैशी से दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ समेत अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मिस्र खित्ते का एक अहम मुल्क है
दोनों वज़रा ख़ारिजा ने पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने के अज़्म का इजहार भी किया। 27 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट कर दी, लिखा जलसे का मौजू अमर बिल मारूफ होगा। लोगो भी शेयर कर दिया, लिखा चाहते हैं जलसे में अवामी शिरकत के रिकॉर्ड टूट जाएं, हम हक के साथ खड़े हैं। लूटी दौलत बचाने के लिए सियासतदानों को ख़रीदने की मज़म्मत करते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि 27 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा होगा। लिखा जलसे का मौजू अमर बिल मारूफ होगा। लोगो भी उनकी जानिब से शेयर किया गया। PTI MNA को पीपल्स पार्टी की जानिब से पैसों की ऑफर। रुकन कौमी असेंबली नुसरत वाहिद का वीडियो बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 16 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध से पैसों की ऑफर हुई। आइंदा इंतखाबात के बाद मखसूस नशिस्त देंगे, ये पेशकश भी की गई। हराम का पैसा नहीं लेना चाहती। हराम का पैसा शक्ल ही नहीं नस्ल भी बिगाड़ देता है। एक पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 दफ़ा ऑफर आई है, एक पंजाब से और एक सिंध से। और पीपल्स पार्टी के ही लोग थे जिन्होंने मुझे कहवाया किसी के थ्रू। और ये ऑफ़र काफ़ी बड़ी ऑफ़र है, जो कि मेरे ख्याल में इसको रजिस्ट करना अच्छा खासा मुश्किल काम है। 16 करोड़ की थी। मैं इस किस्म के पैसे के ऊपर इसलिए बिलीव नहीं करती कि मेरा ख्याल ये है कि हराम की कमाई जो है वो शक्लें नहीं बिगाड़ती, वो आपकी नस्ल बिगाड़ देती है। पार्टी बदल लो, मंजिल बदल लो, हमारे पास आ जाओ, 16 करोड़ रुपए देंगे। यही नहीं, आइंदा इंतखाबात में मखसूस नशिस्त भी देंगे। PTI MNA ने पीपल्स पार्टी के जानिब से ये सब कुछ पेशकश की गई, ऐसा दावा किया। पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध से पैसों की ऑफर हुई। नुसरत वाहिद ने ऐसा बताया। आइंदा इंतखाबात के बाद मखसूस नशिस्त की ऑफर दी गई है। 16 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। लेकिन मैं हराम का पैसा नहीं लूंगी। हराम का पैसा शक्ल ही नहीं नस्ल भी बिगाड़ देता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। PTI रुकन नुसरत वाहिद का वीडियो बयान सामने आया। उन्होंने इल्जाम लगाया, ये दावा किया कि पीपल्स पार्टी पंजाब ही नहीं, पीपल्स पार्टी सिंध भी पैसों की पेशकश कर रही है, सीट की ऑफर कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा। NA 166 भावल नगर से तहरीक इंसाफ के MNA ने इल्जामात की तरदीद कर दी। गफ्फार वटू ने वीडियो पैगाम में कहा, सिंध हाउस नहीं गया, रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नुमी हैं। आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर पार्टी में शामिल हुआ था। करप्शन मुकाओ के नारे पर अमल दरामद ना होने पर मायूसी हुई। मेरा ये मान है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुमी है, और मैं इस तरह के मामले पे लानत भेजता हूँ और इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। और एक जो सिंध हाउस में रैश का, उसकी भी तरदीद करता हूँ कि वो भी बिल्कुल गलत बात है कि सिंध हाउस में बिल्कुल मैं मौजूद नहीं था। और आगे जो एतमाद का वोट है, जो इलेक्शन जिसमें आना है, तो मैं अपने हल्के के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक और अपने ज़िंदगी के मुताबिक फैसला करूँगा कि मैं वो एतमाद का वोट कहाँ कास्ट करूँ। अब मुनहरिफ अरकान के साथ होगा क्या? वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी किए गए हैं। 7 दिन के अंदर पोजीशन वाजे करने के लिए कहा गया है। 1 हफ्ते बाद इनकी नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। तमाम अरकान ता हयात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जा रहे हैं। बहरे सियासत, एक तरफ ज़मीर फरोशी के इल्ज़ामात तो दूसरी जानिब ज़मीर की आवाज़। वज़ीर आज़म ने तो मुनहरिफ अरकान को ज़मीर फरोश करार दे दिया, लेकिन दूसरी जानिब वसीम अकरम प्लस के जलील शरकपुरी और दीगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली से राब्ते और मुलाकातें की गई। क्या ये खुला तजाद नहीं? और इतने खुल के पैसे की पॉलिटिक्स सामने आ गई है कि लोगों को मंडी लगी है ज़मीर खरीदने के लिए। अपने ज़मीर के मुताबिक अगर वो वोट देते हैं तो ये उनकी मर्जी। पाकिस्तानी सियासत का हुस्न निराला, कौन पैसा चला रहा है और कौन है जो अपनी बातों और हालात से एक दूसरे के अरकान को तोड़ने में लगा है। सबूतों के बगैर हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर इल्जामात की भरमार करने में लगे हैं। ये कोई हलाल का पैसा तो नहीं है पॉलिटिशियंस के ज़मीर खरीदने के लिए। बड़े बड़े वो थैलियां पैसे की आ रही हैं। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। आप ये भूल गए कि जो सेनेट में जो
कि इन्होंने वोट खरीदे थे। पीटीआई को अपना चेहरा देखना चाहिए, अपना काला चेहरा, जब सेनेट में उन्होंने हॉर्स रीडिंग की। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ने सिंध हाउस को अपना घोंसला बनाया तो सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला भी मुखालफिन के अरकान को राम करने के मिशन पर लग गए। गरीब लोग हैं बुज़दार साहब, उन्हें हमें इज्जत देनी चाहिए, वो हमें इज्जत देते हैं। बाकी कौन सा कैसा मुफाद है जो हमारी तरफ से किसी ने भी मुतालबा किया है। बस हम चाहते हैं कि अगर वो मोहब्बत वाले आदमी है तो उनको इज्जत दी जाए। जब एक दफ़ा अक्सरियत ने खान साहब को चुना है तो मैं बीइंग ए पाकिस्तानी समझता हूँ कि हमें उस गवर्नमेंट को पूरा राइट देना चाहिए, वो काम करें। तो कम से कम 5 अहबाब ऐसे ज़रूर हैं जो मेरे साथ भी क्लोज राब्ते में हैं और बुज़दार साहब के साथ भी कंफर्टेबल हैं। मियाँ जलील शर्कपुरी ही नहीं, नून लीग अशरफ अंसारी, फैसल नियादी, मौलवी गयासुद्दीन, अदर अब्बास चांडिया भी उस्मान बुज़दार की कमान में हैं, जिन्हें उनकी जमात शोकॉज भी जारी कर चुकी है। ज़मीर फरोशों का उससे मुआजना ही ज़मीर फरोशों की भी तो है। शोकॉज तो हम उनको बहुत पहले का दे चुके। इलेक्शन का वक्त है, उन लोगों को हमने टिकट देने नहीं है, पार्टी से हमने निकाल दिया। पीपल्स पार्टी के 2 अरकान नबील रईस और गजनफर अब्बास को भी बुज़दार की हिमायत में शोकॉज नोटिस मिल चुका है। हर जमात मुखालिफ अरकान को अपने आंगन में खुश आमदीद कह रही है और अपना बंदा टूटने पर ज़मीर फरोशी का इल्ज़ाम लगा रही है। क्या ये खुला तजाद नहीं? साबिक वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं मुनहरिफ अरकान के लिए पार्टी से नाअहली मायने नहीं रखती। डंडे के जोर पर किसी को नहीं मनवाया जा सकता, मिन्नतें की जाती हैं। वो ननकाना में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बंदा डिसाइड कर ले कि मैंने जी नहीं रहना तो डिस्क्वालिफिकेशन नो क्वालिफिकेशन मैटर करती है। आप ये तो नहीं है कि सुबह उठ के एक दफ़ा पता चलता है कि जी आज मैंने ये करना है। आप सारे प्रोज एंड कॉन्स उसके देख के फैसला करते हैं ना। तो जिन्होंने ये फैसला किया है उनके लिए डिस्क्वालिफिकेशन कोई चीज़ नहीं है, कोई नहीं। इस क्या बात करते हैं आप? लोगों को डंडे से कोई वोट ले सकता है? ला मैनू दसो मैं अगली बारी तुहाडे ते डंडा इस्तेमाल करा ना, मिन्नतां ही करी दियां ने। लोगों के तहरीक इंसाफ को छोड़ने का वक्त आ गया है। शेख रशीद भी कुछ दिन के मेहमान हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बड़ा दावा कर दिया। कराची में फूलों की नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर कहा बहार आने वाली है, 10 से 12 दिन में मुल्क भर में फूल ही फूल होंगे। शेख रशीद साहब हमेशा बात करते हैं बाहर की, मैं समझता हूँ छोड़ें इन चीज़ों को। अब वक्त आ गया कि लोग पीटीआई से बाहर निकल रहे हैं। तो शेख रशीद साहब भी बस अब कुछ दिन के मेहमान हैं। 10 से 11 रोज़ वेट कर ले, फूल ही फूल होंगे इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान भर में बाहर का मौसम है ना, ये इंशाल्लाह इस मुल्क की मईशत में भी बाहर आएगी, इस मुल्क के तूलो अर्ज़ के अंदर बाहर आएगी। गवर्नर साहब को बोले आइन पढ़ लें, वो नहीं लगा सकते, उनका काम नहीं है ये। मैं चाहता हूँ मैं उनका एहतराम करूँ। ये फुल टॉस क्यों दे रहे हैं? वो कौन भुगत रही है क्रिकेट को इस वक्त? मैंने इतनी दुआ की थी अगर 2019 का वर्ल्ड कप हम जीत जाते ना तो शायद बाबर आजम हीरो हो जाता, हमारा सरफराज हीरो हो जाता, जान छूट जाती 1992 से। आगे बढ़े, कुछ दीगर खबरें शामिल करें। हादसा रिपोर्ट हुआ उसी की बात करें। जामशोरों में 7 रोड पर कार सामने से आने वाली कोच से टकरा गई। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक हुए। पुलिस के मुताबिक 7 से आने वाली कार वड्डा छछर के मकाम पर लाड़काना जाने वाली कोच से टकराई। इस हादसे में कार सवार मियाँ बीवी, 4 बच्चे और ड्राइवर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक दादू से था। FIA साइबर क्राइम की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई। क्रिप्टो करेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमान के कब्जे से 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो बरामद हुई। इसके अलावा गिरफ्तार मुलजिमान क्रिप्टो करेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। तो FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई सामने आई है। 2 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। मुलजिमान $3.5 लाख बैरून मुल्क भिजवा चुके। मुलजिमान के कब्जे से 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम भी बरामद की गई है। सियालकोट गार्निशन के करीब असलहा शेड में हादसाती तौर पर आग भड़क उठी। मुतालिका इदारों ने बरवक्त इक़दाम करके इस पर काबू पा लिया। ISPR के मुताबिक सियालकोट छावनी के असलहा शेड में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। मौसर और फौरी कार्रवाई करते हुए आग बुझा दी गई। आतिशज़दगी से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ।
आगे बढ़े आपको बताएं, वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 53 करोड़ डॉलर से कम होकर 54 करोड़ 50 लाख डॉलर रह गया है। IMF को पेट्रोल और बिजली सस्ती करने पर एतराज था, उन्हें मुतमईन कर दिया गया है। IMF के साथ मुज़ाकरात का फाइनल राउंड मंगल को होगा। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इस महीने, पिछले महीने फरवरी में वो 545 मिलियन डॉलर हो गया। जनवरी में 2.531 बिलियन डॉलर था। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 28% बढ़ गई हैं। 6.3 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स थी जनवरी में, वो 5.2 बिलियन पे आ गई। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ी हैं, रेमिटेंसेस भी बढ़ी हैं लेकिन थोड़ी बढ़ी हैं, ईद आएगी तो ये बढ़ जाएंगी। एक्सपोर्ट्स हैं वो 20.6 बिलियन डॉलर्स हैं और रेमिटेंसेस 20.1 बिलियन डॉलर है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो जनवरी के महीने में ईयर ऑन ईयर 8.2% ग्रोथ किया। जनवरी वर्सेस दिसंबर 4.2%। वो जो हमने कहा कि हम 5% ग्रो करेंगे तो मेरे ख्याल में 5 करेंगे, हो सकता है उससे ज्यादा भी कर लें। इश्यूज उनके ये हैं कि आप बताएं कि ये जो आपने पेट्रोल के जो लेवी जो उसको फ्रीज किया और इलेक्ट्रिसिटी का किया, ये पैसे हमने उनको बता दिया कि पैसे कहाँ से आएंगे, हमने तो अपना होमवर्क किया हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद घी और तेल की कीमतों को पर लग गए। मुख्तलिफ ब्रांड्स पर मजीद 20 रुपए से 40 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। पेशावर से अब्दुर्रहमान रिपोर्ट करेंगे। रमजानुल मुबारक से कबल ही मुनाफाखोरों के वार, हर पकवान का लाजमी जुज, रोगनियात के नर्ख बेकाबू। पेशावर की ओपन मार्केट में एक हफ्ते में दर्जा स्वयं घी की फी किलो कीमत 360 रुपए से बढ़कर 380 रुपए तक, जबकि अच्छी क्वालिटी का घी फी किलो 430 रुपए से बढ़कर 470 रुपए तक पहुंच गया। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, रमजान आ रहा है, हम आगे क्या करेंगे ना, सौदा कैसे लेंगे। ये इंटरनेशनल रेट जब बढ़ते हैं तो इस पे असरअंदाज होता है, तो जब इसका रेट बाहर से कम होगा इधर लाजमी कम होगा, जब उधर से ज्यादा होगा, जैसे पेट्रोल की कीमत है। मुनाफाखोर सरगर्म है, ताहम हुकूमती इक़दामात ना होने के बराबर हैं। ज़िले इंतज़ामिया है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि गिरा फरोशी का कलाकमा करें, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनको पकड़ें। किसी भी जगह पे अगर कोताही हुई, अगर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से या किसी भी जानिब से, तो मैं ये आपको बावर कराता हूँ कि वज़ीर आला महमूद खान की एडमिनिस्ट्रेशन में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है। ताजरों के मुताबिक माह मुबारक में मांग के बायस घी व तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। कराची में मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत तो 365 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, मगर दुकानदार कम शेयर कराची के मुकर्ररा करदा रेट्स को किसी खातिर में नहीं ला रहे। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने मुर्गी के गोश्त की नई कीमतें तो मुकर्रर कर दी, लेकिन उन पर अमल दरामद कौन कराएगा? शहरियों को सरकारी निर्ख पर चीजें कैसे मिलेंगी? खरीदारों के इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रेट मुकर्रर हो उसमें मिल रही हो। आप दूध देख लें, गोश्त देख लें, गवर्नमेंट के रेट कुछ और है, मगर दुकानों में मिल रहे हैं कुछ और रेट पे। कोई ऐसा कहने सुनने वाला है नहीं। कमिश्नर साहब की जो लिस्ट है भाई, उसके मुताबिक तो कोई चीज़ भी नहीं मिलती। वो तो हमने उनको मैसेज भी किया था एक दफ़ा कि वो कहाँ से मिलती है वो चीज़, तो उन्होंने बोला जो है पूरे कराची में ये है अवेलेबल है। सरकार की जानिब से जिंदा मुर्गी की कीमत 235 रुपए और गोश्त का निर्ख 365 रुपए किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन बाजार में दुकानदार 440 से 480 रुपए किलो तक गोश्त फरोख्त कर रहे हैं और सरकारी निर्खनामों को नाकाबिले अमल समझते हैं। कमिश्नर कराची ने जो रेट तय किया है वो हमारी मशावरत से नहीं किया, वो उन्होंने फार्मर आए हैं, फार्मरों ने उनको बोला है कुछ कि भाई हम इसके ज़िम्मेदार हैं, अगर हमें बुलाएंगे तो हम अपना पॉइंट देंगे ना। हमें उस रेट में प्रोवाइड नहीं हो रही। होलसेलर और जो ऊपर फार्मर हजरात हैं उनके रेट जो है ना ज़्यादा है। अब रात भी हमें मुर्गी जो हमें जो मिली है वो मिली है 280 और कमिश्नर साहब के जो रेट आए हैं वो है 235। शहरियों का कहना है कि जब तक कमिश्नर कराची कीमतों के मामले पर अपनी रिट कायम नहीं करते, उनके जारी करदा सरकारी निर्खनामों की हैसियत ज़बानी जमा खर्च से ज़्यादा की नहीं होगी। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। वज़ीर-ए-आज़म की रेकोडेक का नया मुआहिदा होने पर कौम को मुबारकबाद सामने आई है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि 10 साल के मुज़ाकरात कानूनी जंग के बाद ये मुआहिदा तय पाया। 11 अरब डॉलर जुर्माने से बचे, 10 अरब
डॉलर बलूचिस्तान में लगाए जाएंगे। वजीर आजम ने ट्वीट कर दिया, कौम को मुबारकबाद दे दी। 10 साल के मुज़ाकरात, कानूनी जंग के बाद ये मुआहिदा तय पाया। अब 11 अरब डॉलर जुर्माने से बच गए हैं। 10 अरब डॉलर्स बलूचिस्तान में लगाए जाएंगे। बलूचिस्तान में 8000 नई नौकरियां निकलेंगी। वजीर आजम ने कौम को मुबारकबाद दी, ऐसा ट्वीट किया। 10 साल के मुज़ाकरात, कानूनी जंग के बाद ये मुआहिदा तय पाया। जुर्माने के 11 अरब डॉलर से बच गए हैं। अब 10 अरब डॉलर्स बलूचिस्तान में लगाए जाएंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने ट्वीट कर दिया, कौम को मुबारकबाद दे दी। बलूचिस्तान में अब नई नौकरियां मिलेंगी, 8000 नई नौकरियां मिलेंगी। खेल की बात करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और फैसला कुन टेस्ट कल से शुरू होगा। दोनों टीमों ने तैयारियों को फाइनल कर लिया है। दोनों टीमों ने मुसलसल दूसरे रोज़ प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम का रुख किया। पहले पिच का जायजा लिया गया, इसके बाद फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की गईं। कप्तान और कोच ने मैच के लिए हिकमत अमली भी बना ली। मैच जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम करेगी। पिंडी और कराची का टेस्ट ड्रॉ हुआ था। कज़ाफी स्टेडियम 2009 के बाद पहली बार टेस्ट मैच की मेज़बानी करेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी के राजा बाजार का नाम सुनकर जहन में जा बजा तजावजात और ट्रैफिक जैम के मनाजिर उभरते हैं, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया ने राजा बाजार पर लगी ये छाप मिटाने का फैसला कर लिया है। वो कैसे, जानते हैं उमर आसिफ की इस रिपोर्ट में। जगह जगह ट्रैफिक जैम, तजावजात की भरमार और ऊपर से बेहंगम तारों का जाल। रावलपिंडी के राजा बाजार की ये हालत बदलने को है, क्योंकि जिले इंतजामिया ने इस बाजार की तारीखी हैसियत बहाल करने के लिए कमर कस ली। स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने की वजह ये है, हम आपको रोड भी नया बना के दे रहे हैं, उसकी ब्यूटिफिकेशन भी कर रहे हैं, प्लांटेशन भी करेंगे। कम से कम फिर दुकानदार और जो ताजिर तंजीमें हैं उनको भी हम बाउंड करें कि वो भी फिर जो हमारे साथ कमिटमेंट करें उस पर वो अमल पैरा भी हों। राजा बाजार को न सिर्फ ट्रैफिक के लिए बंद करके तजावजात का खात्मा किया जाएगा, बल्कि बरक़ी कुमकुमों और पौधे लगाकर इसकी तज़ीन और आराइश भी की जाएगी। ताजिर भी मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए इंतजामिया के साथ हम आवाज़ हैं। रावलपिंडी शहर एक तारीखी शहर है और राजा बाज़ार जो है वो कदीम एक बाज़ार है शुरू से, और इसकी जो तारीखी हैसियत है वो बहाल होनी चाहिए। ताजरों का भरपूर तावन साथ होगा TMA के साथ। जिले इंतजामिया पर उम्मीद है कि राजा बाजार को खूबसूरत बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तारीखी अहमियत के इस बाजार की अगर खूबसूरती फिर बहाल हो जाती है तो ये वाकई पिंडी वालों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। क्वेटा में बाहर आई खूबसूरत वादी हन्ना सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट। मौसमे बहार के रंग, दोस्तों यारों के संग, ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके, मीठे चश्मों का पानी, ये है क्वेटा का खूबसूरत तफरी मकाम वादी हन्ना, जहाँ की दिलकशी और पुरसुकून माहौल सयाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। यहाँ की आबो हवा एक बिल्कुल पहाड़ों में एक उसमें से बहुत खूबसूरत अपनी नोयत के हवाले से अलहदा वो पहचान रखती है। शहरी कहते हैं कुदरती माहौल में कुछ वक्त गुजारने से दिन भर की थकन दूर हो जाती है। कुदरती एटमॉस्फेयर है, नेचुरल ब्यूटी है, शहर के रश से और आलूदगी से जहन को सुकून देने के लिए इससे बेहतर इलाका कोयटा के कुर्ब और जवार में मौजूद नहीं है। मकामी अफराद भी दिलकश वादी की रौनक बढ़ जाने पर खुश हैं। बारिशें हुआ है, बर्फबारियाँ हुआ है, इस वजह से पानी भी ज्यादा है। लोग जो आते हैं पिकनिक वाले इधर ही बहुत लुत्फानंदोज होते हैं। मौसम बहार की आमद के साथ ही वादी हन्ना में सेब, बादाम और खुबानी के दरख्त सफेद और गुलाबी फूलों से सज गए हैं। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा।